In every corner of India, far from the spotlight, live the real architects of sporting excellence. Coaches, mentors, teachers, and trailblazers who give their all without ever seeking fame, tirelessly dedicating themselves to build the very foundation on which champions now rise. These are the silent legends of Indian sport. Steadfast, selfless, strong. Today's young athletes may not know their names, just as many of these veterans remain unaware of the incredible new energy pulsing through Indian sports. Silent Legends is a heartfelt initiative to bridge the emotional and generational gap through meaningful conversations that honor the past and inspire the future. At Sportsmongers, we believe that behind every victory stands a forgotten hand that once lit the way and is still doing it now. Watch, listen, learn. It's time to reconnect with gratitude, with vision, and with those who made it all possible. A name that resonates with power, perseverance, and purpose, Nirbhay Singh is more than just a former international hammer thrower. He is a mentor shaping India's next generation of athletes with a personal best of 67.80 meters and years of international experience at Asian Championships. Singh's story is one of grit against odds, training in Amroha without proper grounds, often sending his hammer crashing near classrooms, yet dreaming big enough to carve a space for himself on the world stage. Today, as a coach at the National Centre of Excellence, Sai Sonipat, Nirbhay Singh is dedicated to nurturing young talent, especially juniors, with the belief that India's future in athletics lies in scientific training, grassroots infrastructure, and unwavering passion. His journey from a schoolboy practicing without facilities to mentoring athletes who aspire to Olympic podiums is a testament to resilience and vision. कि उसमें हमारे जो खेलो इंडिया स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो इसको और बढ़ा दें थोड़ा और बच्चों को स्टेट लेवल से जो है आइडेंटिफाई करें कम से कम। तो एथलीट को उस टाइम संभालना, उसकी काउंसलिंग करना वह कोच की जिम्मेदारी होती है। ग्रासरूट लेवल से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उनको एथलीट को ट्रेनिंग कराई जाए। मेरे पास में बहुत टैलेंटेड एथलीट हैं आज की डेट में, और जो जूनियर वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं ज्यादा होप कर रहा हूँ। बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है भारत में पूरे में। नामुमकिन कुछ नहीं है, आपके पास विश्वास होना चाहिए, आप डेडिकेशन होना चाहिए, आप करेंगे। मैंने रेगिस्तान में कुआं खोद के पानी पिया है, जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, जहाँ संसाधन ही नहीं थे, वहां से मैं हैमर थ्रोवर बन के खड़ा हुआ। तो बस वो अलग बनने की, सबसे अलग बनने के, अपने आप को बनाने के लिए मैंने अपना स्पोर्ट्स को जो है अपना कैरियर बना लिया। Nirbhay ji, thank you for joining us. To begin with, could you introduce yourself and your background in athletics? जी, मैं निर्भय सिंह, एथलेटिक्स कोच, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट, और अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी सेंटर है वहाँ पर कोच हूँ। और हैमर थ्रो मेरा इवेंट रहा है, और अभी भी हैमर थ्रो और जो डिस्कस थ्रो हैं वो मेरे पास में एथलीट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जूनियर और सीनियर के मेडलिस्ट हैं, इस टाइम में अच्छा कर रहे हैं। What was your personal best in hammer throw? मैंने अपने करियर में जो मेरा पर्सनल बेस्ट रहा है 67.80 मीटर मैंने किया है। सालवान इंटरनेशनल इवेंट इंडिया ने ही कराया था, तो उसके अंदर मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। Can you share some of your international achievements as a player
एशियन चैम्पियनशिप 99, 2002 जो कोलंबो में हुआ था, और फिर 2007 में अम्मान जॉर्डन में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था। इनमें मैंने भारत की ओर से खेला हूँ, और उसमें मेरा बेस्ट जो बेस्ट 7th रहा था जो 2007 वाली एशियन चैम्पियनशिप के अंदर। तो ये मेरे अचीवमेंट रहे हैं एज ए प्लेयर वाले। After such a career as an athlete, how did you transition into coaching? और अभी एज ए कोच वाला जो मेरा ड्यूरेशन है 2013 से लेके जो अभी तक का, उसमें जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है नीरज कुमार, वो मेरे पास ही और नेवी का एम्प्लॉय था। मैं भी पहले नेवी में ही सर्विस करता था। अभी 2013 में मैंने उधर से रिटायरमेंट लिया है। तो वो एथलीट तैयार किया था। बाई चांस वो इंजरी की वजह से जैसे ही नेशनल रिकॉर्ड हुआ था उसके कुछ टाइम बाद में वो हडल के ऊपर कुछ थोड़ा सा अपना जो एक्सप्लोजिव वाला वर्कआउट था उसमें ग्रोइंग इंजरी हुई थी उसे। उसकी वजह से हमारा एक अच्छा एथलीट खराब हुआ है। लेकिन ये था कि उससे हम लोग भी होप कर रहे थे कि कम से कम वो एशिया का और कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट हो जाएगा। What motivated you to take up sports in the first place, given that you didn't have a sporting background? एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। अगर मैं एज ए प्लेयर वाली बात करूं तो बस जो मेरी अपनी स्कूल लाइफ थी उसमें आम लोगों में से खास बनने की एक चाह थी। लोग हीरो बनते हैं, वो लोग गलत ट्रैक पे जाके कि हम अलग हैं, सबसे सबसे दबंग हैं। तो लेकिन मेरा अपना मानना था कि एक ये लाइन है जिसके अंदर आप स्टार बन सकते हैं, जिसमें आपकी अलग पहचान होगी, आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे। तो बस वो अलग बनने की, सबसे अलग बनने के, अपने आप को बनाने के लिए मैंने अपना इस स्पोर्ट्स को जो है अपना कैरियर बना लिया। और वहाँ संसाधनों की कमी थी। अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो वहाँ पर उस समय में तो स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं होता था कहीं कहीं जो खेल एक्टिविटी करें। इवन मैं जिस स्कूल का स्टूडेंट था, हिंदू इंटर कॉलेज का, तो वहाँ पर भी खेल का मैदान नहीं था। छोटा मैदान था जो अंदर ही था, उसी में सब बच्चे खेलते थे। वहीं पर मैं भी हैमर फेंकता था। कई बार वहाँ ऐसा भी हुआ कि कभी क्लासरूम के ऊपर हैमर लैंड हो गया जाके थ्रो करने के बाद में, तो फिर प्रिंसिपल बुला के बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आप ग्राउंड में नहीं करोगे, आप चैंपियन बन गए हो डिस्ट्रिक्ट के और रीजन के और स्टेट मेडलिस्ट हो गए हो, और अब आपका हो गया है +2, तो आप अपना कोई दूसरा मैदान देखिए, आप हो गए डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशंस थी उस टाइम में कि लोग कहते हैं कि कुआं खोद के पानी पिया, कहावत है। लेकिन मैं सीधा सा बोलता हूँ, मेरा जो अपनी ओर से है, मैंने रेगिस्तान में कुआं खोद के पानी पिया है। Who was the coach that guided you in your early career? जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, जहाँ संसाधन ही नहीं थे, वहाँ से मैं हैमर थ्रोवर बन के खड़ा हुआ। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो मेरे कोच थे, एक्स आर्मी हैं अभी, उस टाइम में आर्मी में हुआ करते थे, यशपाल सिंह, सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं। उन्होंने 94 में NIS कर रहे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा कर रहे थे। उन्होंने मुझे हैमर की टेक्निक सिखाई, और अपना जो भी उनका छुट्टी वाला टाइम होता, जब भी लीव आते थे उस समय में, उन्होंने मुझे सिखाया कि हैमर कैसे पकड़ते हैं। उसके पहले तो मैं 3 साल से 91 में, जैसे मैं जुलाई 91 से शुरू किया था, तो मैं रोंग ग्रिप पकड़ के ही हैमर की और थ्रो कर रहा था। तो उन्होंने दिया मुझे एक रास्ता, और इसका जो बहुत बड़ा श्रेय उन्हें जाता है। How do you approach coaching athletes today? और जो जूनियर वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं ज़्यादा होप कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीनियर बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ी सी समस्या रहती है। वो समस्या है कि वो लोग जो बेसिक्स में जो रोंग टेक्निक सीख के आते हैं, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो रोंग टेक्निक है उसके ऊपर आप उनको डिलीट करने में आपके सालों निकल जाते हैं। और जब भी मैं अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सोनीपत में, तो वहाँ जहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एथलीट को नहीं रख सकते। वहाँ 2 साल दे सकते हैं,
अब आप 1-1.5 साल तो उसकी जो है टेक्निक को इम्प्रूव करने में जो फॉल्ट है वो देखे बेसिक में लेके आ गए सीखकर, उन्हें क्लियर करने में निकाल देंगे। फिर उसके बाद में उसका जो है समस्याएं वही आ जाती हैं कि आप बेंचमार्क हिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बड़े आपको गोल दिए गए हैं कि आप एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, फिर उसके बाद में अपने आप नेक्स्ट गोल फिक्स करो कि आप ओलंपिक में पार्टिसिपेशन, फिर मेडलिस्ट तैयार करने के लिए आपको कितने साल चाहिए, कैसे करना है, क्या प्लान। तो मैं जूनियर बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीनियर एथलीट मेरे पास है उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग उनको भी करा रहे हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी में मेरे जूनियर बच्चे ज़्यादा हैं। How do athletes respond to your coaching compared to foreign coaches? बाहर के कोचेज हैं, उन्होंने जो स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर बहुत काम किया है, और हमारे भी जो आज की डेट में हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत मुहिम चलाई हुई है। लेवल 1, प्री लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2 ये कोर्स करा रहे हैं। उनमें यही सारा वो है कि आप इस एज ग्रुप के बच्चे को क्या ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से लोड देंगे, तो एजुकेट कर रहे हैं। तो AFI उसके ऊपर बहुत बड़ी एक मुहिम चला रखी है अपने कोचेज को एजुकेट करने में। नामुमकिन कुछ नहीं है, आपके पास विश्वास होना चाहिए, आप डेडिकेशन होना चाहिए, आप करेंगे। What guidance do you give athletes today? आज की डेट में जितना भी ट्रेनिंग लोड बच्चे करते हैं, वेल प्लान करते हैं। पूरे साल का ट्रेनिंग का जो शेड्यूल्स है उनको प्लान करते हैं। जिस फेज में भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, चाहे आप एडाप्टेशन में हैं, चाहे आप मसल्स हाइपरट्रॉफी करा रहे हैं, चाहे आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, चाहे आप प्री कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिव पीरियड में आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमें कभी ये उनकी ओर से एक्सप्लेन नहीं किया जाता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा डबल माइंड रहते थे कि ट्रेनिंग के फेज होते हैं पूरे साल का जो हम लेके चलते हैं बिल्कुल A से Z तक, उस चीज को एक्सप्लेन करते तो जो मेरा मानना है, तो एथलीट बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो विश्वास के साथ काम करेगा। पहले आप फेज में चल रहे हैं, अडाप्टेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक में है, वहाँ एथलीट की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन होती ही है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज से निकल के आ रहे हैं। फिर उसके बाद में जब आप मसल्स हाइपरट्रॉफी करा रहे हैं, तभी भी कोई बड़े मीटर नहीं मिलेंगे आपको परफॉर्मेंस के। तो एथलीट को उस टाइम संभालना, उसकी काउंसलिंग करना, वह कोच की जिम्मेदारी होती है। वो चेंज जो आप चेंज की बात कर रहे थे, तो वह आज जो है कोचेज इस चीज से हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। अरे इवन ये एजुकेट हो रहे हैं, इसलिए हेजिटेशन नहीं है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एथलीट तैयार हो जाता है कि हम तो क्लियर बता देते हैं कि बेटा आप ये वर्कआउट कर रहे हैं, ये आपकी स्टेयर है, इन ब्लॉक में चल रहे हैं, यहाँ पर आपको मीटर नहीं मिलेगा, आपको जो मीटर मिलेगा, जो परफॉर्मेंस मिलेगी, वो इस फेज में जाके मिलेगी। तो एथलीट ब्लाइंडली फिर अपना ट्रेनिंग करते हैं। From your experience, what is lacking at the grassroots level? सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप करने चाहिए। जो मेरा मानना है, जो स्टेडियम उस स्तर के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेवलप करने चाहिए, वो मल्टीपर्पज हॉल, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर थोड़ा जो गर्मी का और ह्यूमिडिटी का एक लॉन्ग जो वेदर है यहाँ का अपना इंडिया का, तो इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हुए एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जो मेरा मानना है, ऐसे हम उनको प्लेटफॉर्म दें, वहाँ अच्छे कोचेज जो है दिए जाएं, तो जिससे कि वो ग्रास रूट लेवल से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उनको एथलीट को ट्रेनिंग कराई जाए, और वो सुविधाएं वहाँ ग्रास रूट लेवल पे दी जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार ने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई हुई है, खेलो इंडिया चला रखा है, स्कीम चलाई हुई है, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। वहाँ जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होती है खेलो इंडिया के लिए, जो नेशनल चैंपियनशिप होती हैं, तो उन नेशनल चैंपियनशिप से एथलीट उठाए जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जो मेरा सजेशन है इसमें, आप एथलीट को स्टेट लेवल से उठाइए, वहाँ से आप आइडेंटिफाई करिए, वहाँ से उनको स्कॉलरशिप करिए, देना शुरू करिए। Looking back at your own career, are you satisfied with what you achieved? मैं अभी तक अपने जो भी मेरे पास बेसिक में सुविधाएं थी, एज ए प्लेयर मैंने जो काम किया है, और जो भी मुझे टेक्निक के बारे में, हमारे PTI थे तो उनको बेचारों को कुछ पता नहीं था इसके बारे में,
कि भाई आपको कैसे हैमर पकड़ना है या कितने वेट का हैमर चाहिए। तो जब 91 में मैंने शुरू किया था तो उस टाइम में उस एज ग्रुप में क्या हो हैमर चाहिए या कहाँ पर क्या रास्ते हैं, कौन कौन सा आपको कॉम्पिटिशन खेलने हैं। तो 2-3 साल तो मैं ऐसे ही करता रहा। बस एक पता था कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट होगी, रीजन होंगे और स्टेट चैंपियनशिप होगी और स्कूल नेशनल होगा। उसके अलावा हमें भी जानकारी नहीं थी कि और कौन से कंपटीशन होंगे। और मैं उन सब सुविधाओं से जो मेरे पास शुरू में रही तो उनसे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। और उसके बाद में जो कुछ मुझे डिपार्टमेंट ने दिया, फिर उसके बाद में साई ने मुझे लिया है, तो मैं जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है वो मैं उससे संतुष्ट हूँ और बहुत कुछ करने के लिए अभी बाकी है, वो प्रयास जारी रहेगा। If this inspired you, like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.